Hello everyone, this is chapter 6 from Geography, Natural Vegetation and Wildlife. So let's start the chapter. So in the beginning of the chapter, there is a small story related to a girl that she went in a summer camp. When she went, she observed that there are different types of plants, means we can say there are different types of vegetation, and if we find there are different type of vegetation, so definitely we will get the different type of wildlife. So what are the reason behind it, why we find the varieties of different type of vegetations or varieties of vegetation and wildlife. So it's depend on the latitudinal height, temperature, moisture, etc. बेसिकली जब हम देखते हैं कि हम एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं, दैट वी कैन से डिफरेंट टाइप की वेजिटेशंस देखने के लिए मिलती है. एंड इफ वी फाइंड द वेराइटीज ऑफ vegetation, so that we'll get the different type of wildlife. क्योंकि अगर जंगल होंगे different type के, so that वहाँ पर अलग अलग टाइप के जानवर भी रहेंगे. So basically in this chapter we'll study about the different type of forest or different type of vegetation and wildlife. So first, we understand the tropical evergreen forest. And in your geography book, you have already studied about the biosphere, lithosphere, hydrosphere, and atmosphere in a particular chapters. Means that the previous chapter related to your hydrosphere, means water, then that another chapter means air is related to atmosphere, then where we studied about the different type of rocks, that is related to your lithosphere, and the first chapter is related to biosphere, means a mixture of lithosphere, hydrosphere and atmosphere. So let's understand the tropical evergreen forest. So what is tropical evergreen forest is just related to the name evergreen. So evergreen means all time it's look like a green, and this forest means a tropical evergreen forest, also known as the tropical rainforest. So it's a totally dependent. ये जो दो नेम है ये एक दूसरे से क्या होते हैं, डिपेंड इंटरडिपेंड करते हैं या डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर और कनेक्ट हैं. एवरग्रीन है इसलिए रेन फॉरेस्ट है इसलिए एवरग्रीन है. लेट्स अंडरस्टैंड why. So in a sixth class you studied about the different type of the means globe and different type of the lines. So जो beach that 0 point, it's called the equator, and 23.5 degree. जैसे ही आप टॉप पे जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड डाउन साइड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इट्स 23.5 degree. सो बेसिकली ये जो बीच का पार्ट होता है ये आपका दिस पार्ट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल एरिया. और जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो आपका जो एरिया है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो जो बीच का पॉइंट होता है, बीच का पार्ट होता है, वो आपका जो कहलाता है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, या सॉरी ट्रॉपिकल एवरग्रीन एरियाज होते हैं. सो यहाँ पर जो फॉरेस्ट आपको मिलेगा वो कैसा होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा. सो नाम से ही है कि यहाँ पर हमेशा क्या होती है, ग्रीनरी होती है. सो इसलिए हमें इन्हें कहते हैं रेन फॉरेस्ट, बिकॉज यहाँ पर हमेशा क्या होती है, बारिश होती है. पेड़ों को ग्रीन होने के लिए हमेशा पानी चाहिए रहता है. सो यहाँ पर क्या है कि इक्वेटर रीजन में ही क्या होते हैं, क्लोज टू ट्रॉपिक्स इक्वेटर रीजन में आपको मिलते हैं. तो इसलिए यहाँ पर क्या होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है. एंड इसमें क्या होता है कि इनकी जो लीव्स होती हैं वो हमेशा ग्रीन होती है, बिकॉज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स.
ठीक है, एक साथ ये अपनी जो शेड्स होती हैं ये नहीं गिराते हैं, तो इसलिए ये हमेशा ग्रीन दिखते हैं और ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डेंस होते हैं, इवन सनलाइट जो होती है इनके अंदर में नहीं आ पाती है। और जो बेसिकली यहाँ पर आपको कॉमन ट्रीज़ मिलेंगे वो रोज़वुड, इबोनी एटसेट्रा ट्रीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड सेम एज़ the second forest is tropical deciduous forest. So it's already related to the name. Means first we studied about the tropical evergreen forest. Now second is tropical deciduous forest. So डेफिनेटली ये भी आपको उसी एरिया पे मिलेगा, मीन्स ट्रॉपिकल एरिया पे ही मिलेगा। देयर आई ऑलरेडी एक्सप्लेन वेयर इज द एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पर होंगे। तो अब जो आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मीन्स दे गेट द ऑल टाइम रेन, उनको हमेशा पानी मिलता है। बट हियर मीन्स ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज द मॉनसून फॉरेस्ट। सो इनको हमेशा पानी नहीं मिलता है। दे फाउंड द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका। सो व्हाट इज द स्पेशल क्वालिटी और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट? बिकॉज द नेम tropical evergreen means called the rainforest, and tropical deciduous forest are also known as monsoon forest. So it depend on the monsoon means water. So season में ही इन्हें क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। तो definitely they shed their leaf because इन्हें जब बाद में पानी नहीं मिलेगा तो ये अपनी पत्तियों को क्या करेंगे, गिरा देंगे। एंड यहाँ पर जो हमें फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं दे आर नॉट टू डेंस, वो घने नहीं होंगे क्योंकि पानी की क्या होती है, कमी होती है। एंड जो यहाँ पर हमें पेड़ देखने के लिए मिलते हैं या फिर हमें जो वेजिटेशंस मिलती है दैट इज साल, टीक, नीम, सीसम एटसेट्रा। टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, लंगून, मंकी आर द कॉमन एनिमल्स। तो ये हमें वहाँ पर जो एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ है ये भी हमें मिलते हैं। नाउ थर्ड वन इज द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो आपका टेम्परेट जो रीजन है, तो अभी मैंने आपको ट्रॉपिकल रीजन आपको बता दिया। सो सेम एज आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका इक्वेटर हो गया बिकॉज इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। 23 में मैंने आपको बता दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो आपका आता है बेसिकली रफ स्ट्रक्चर विल टेक इट दैट जो आपका अप्रॉक्स आता है आपका यहाँ पर 66.5 डिग्री, एंड यहाँ पर भी आप जाएंगे दिस साइड भी 66.5 डिग्री। तो ये वाला जो पार्ट आपका होता है, ये वाला आपका पार्ट कहलाता है आपका टेम्परेट रीजन। सो यहाँ पर जो आपको वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगी, इस रीजन में जो वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगी उसे ही हम कहेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो ईस्टर्न पार्ट है, मार्जिन, ईस्टर्न पार्ट में जो भी आपको मार्जिन एरिया यानी कि जो पानी वाले एरियाज मिलेंगे वहां पर आपको जो फॉरेस्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। लाइक एग्जांपल साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राजील एटसेट्रा। सो यहाँ पर बेसिकली आपको इन पार्ट्स में आपको जो ट्रीज मिलेंगे या फॉरेस्ट मिलेंगे दैट इज कॉल्ड द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड जो यहाँ पर कॉमन ट्रीज आपको देखने के लिए मिलेगी ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट वन है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। सो सेम एज जैसे हमने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में स्टडी किया, सेम एज यहाँ पर आपको टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। सो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जैसे ही आप इसके और ऊपर जाएंगे, फर्दर हायर लैटिट्यूड में आप ऊपर जाते हैं तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है आपका डेसिडियस, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। So these are found in the northeastern parts of USA, China, New Zealand or Chile are also found in the coastal region of Western Europe. So यहाँ पर आपको जो forest मिलेगा that's called temperate deciduous forest, and as the name of, because already I explained deciduous means called monsoon forest. So यहाँ पर आपको मॉनसून मीन्स जैसे ही यहाँ पर पानी जो है वो कम होगा, एंड इफ द क्वेश्चन विल कम राइट द डिफरेंस बिटवीन द evergreen and deciduous forest, doesn't matter it's temperate or tropical. So first difference you can write or you have to write that is they shed their leaf or they do not shed their leaves, means जो evergreen forest है they should not
शेड देयर लीव्स, वो नहीं गिराते हैं। और यहाँ पर जो डेसिडियस होते हैं, दे शेड देयर लीव्स इन अ ड्राई सीजन। एंड जो इनके स्टेम्स होते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट के, वो थोड़े से हार्ड होते हैं बिकॉज पानी की कमी होती है। एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो स्टेम होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एंड कॉमन ट्रीज यहाँ पर मिलेगा आपको ओक, एश, बीच। एंड द वाइल्ड लाइफ मीन्स डियर, फॉक्स, वॉल्स एटसेट्रा। Now next one is the Mediterranean vegetation. So Mediterranean vegetation where you find the Africa, Europe and Asia के बीच में जो आपको ये वाटर बॉडीज देखने के लिए मिलती है, ये जो ग्रीन सॉरी ब्लू कलर से इट्स शोन एज ब्लू कलर। सो यहाँ पर इन इट्स नॉट मीन्स पानी के अंदर, उसके आसपास का जो एरिया है वहां पर आपको जो वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगी, मीन्स यहाँ पर आपको और दिस प्लेस और यहाँ सब ये एरिया में जो आपको वेजिटेशन देखने के लिए मिलता है, दैट्स कॉल्ड द मेडिटेरियन वेजिटेशन। सो बिकॉज ये मेडिटेरियन सी के पास में मिलता है, सो इसके नेम के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, नेम दे देते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन। And the last is the coniferous forest. So coniferous forest is also known as its name, coniferous means उसका conical shape होता है। और जैसे ही आप हायर लैटिट्यूड यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं, सेम एज यहाँ पर ये आपका इक्वेटर हो गया, देन फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट लाइन हो गई। और इसके बाद में आप जैसे ही ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा 50 to 70 के बीच में, तो इसके बीच में जो आपको यहाँ पर फॉरेस्ट मिलेंगे, दैट्स कॉल्ड कोनीफेरस फॉरेस्ट। इन विल नॉट गो अप मीन्स 90 डिग्री पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ स्नो है, बहुत स्नो होने की वजह से वहाँ पर वेजिटेशन एकदम ना के बराबर ही होता है या नहीं ही होता है। In a higher latitude means 50 to 70 of northern hemisphere, we'll find the coniferous forest. These forests are also known as taiga. सो बेसिकली यहाँ पर जो सनलाइट है वो कम होगी, तो यहाँ के जो पेड़ होंगे वो कैसे होंगे, टॉल होंगे। एंड ऑब्वियस बिकॉज हियर विल गेट द लेस सन लाइट्स, तो हम यहाँ पर जो हमें वुड मिलेगी दैट इज सॉफ्ट वुड। एंड एवरग्रीन ट्रीज वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग pulp which is used for manufacturing the paper and newsprints, and also helpful for making the matchbox or packing boxes। तो आपके क्योंकि बिकॉज यहाँ पर सॉफ्ट वुड होती है, तो मैच बॉक्स की जो स्टिक्स जो मैच बॉक्स होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते। सो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए इनका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। एंड यहाँ पर जो ट्रीज हमको देखने के लिए मिलेंगे वो ट्रीज हमें किस टाइप के मिलते हैं, दैट आपको जो ट्रीज होंगे वो कोनिकल शेप के होंगे, लाइक जैसे जिन्हें हम क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा क्या होती है, स्नोज होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इनके कोनिकल शेप होने की वजह से जब स्नोज होती हैं तो साइड से क्या होती हैं, गिर जाती हैं। एंड अगर जो हमारे यहाँ पर जैसे लीव्स होती हैं लाइक दिस शेप, तो इसमें क्या होगी, स्नोफॉल होगा तो ये यहाँ पर रह जाएगा, गिरेगा नहीं नीचे, तो ये लीफ क्या होगी, खराब हो जाएगी। एंड ये बहुत मोटी होती हैं, थिक, इनमें वैक्स लेयर होती है, इसकी वजह से ये लीव्स जो होती हैं वो जल्दी खराब नहीं होती हैं। चेर, पाइन etc. trees are commonly found in the coniferous forest areas, and silver fox, mink, polar bear, common animals फाउंड हियर। तो ये जितने भी एनिमल्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फर होते हैं, और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मोटे होते हैं, इन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। सो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे डिफरेंट टाइप के एरियाज हैं, इट्स नॉट डिपेंड ऑन कि केवल हमें आपके ये फ्लोरा और फौना में ही डिफरेंट वेराइटीज देखने के लिए मिलती है। विल गो द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेस दैट वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ह्यूमन बींग्स मीन्स आपको डिफरेंट कलर्स देखने के लिए मिलेगा, डिफरेंट टाइप की हाइट्स देखने के लिए मिलेगी, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर।
जैसे जैसे टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा स्किन का कलर होता है, हमारे हेयर टाइप्स होते हैं, हमारा कॉस्ट्यूम होता है। तो हमें डिफरेंट टाइप के ह्यूमन बींग्स भी क्या होते हैं देखने के लिए मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट भी देखने के लिए मिलते हैं। एंड इन अ सेम थिंग कि कई बार हमें ऐसा भी होता है कि एक ही टाइप के पेड़, लेकिन लाइक हम अलग अलग जगह पे जाते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के नेम्स क्या होते हैं देखने के लिए मिलते हैं। मतलब पेड़ सेम ही है, वेजिटेशन सेम है, बट उसके नेम क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो डिपेंड करता है वेराइटीज, वो हमारे लैटिट्यूडनल हाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, इनके ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है। तो बेसिकली दिस इज द summary of the chapter 6, and hope you understand the concept of the chapter, कि किस तरीके से हमारा जो वेजिटेशन है वो हमारे लिए हेल्पफुल है और हमें क्या-क्या चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। एंड किस तरीके से जो हमारा फॉरेस्ट है वो हमारे क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है, और वो हमारे लिए क्यों यूज़फुल है। सो टिल दैट टेक केयर, एंड नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियोज़।